Hello, last equation I have discussed with you all the real application of quadratic equation, real life application, and the method of factorization, and by which you can solve the quadratic equation and by using the splitting term. Now some more questions I am going to discuss in this section, session 2, related to factorization method. Let's begin. Now this is the part 2 of quadratic equation. Now first of all I am going to take two questions which I have taken from your class 9th book. Actually this factorization you have learnt in your class 9th only, and just you see how easily it can be done. Simply these two questions are there, and what we have to do is we can solve this by using, let us take the first question. Here we have discussed previously that n1 into n2 is equal to, this should come a into c. So what is a into c? 2 into 1 upon 12. This is 1 upon 6. Now we should bring 1 upon 6. So what we have to do is, in order to bring 1 upon 6, what we have to do? We have two options. We can take 1 minus 1 upon 6. This will become 6 minus 1 into minus 1 upon 6. In the yesterday's session, Principal Sir has already discussed, and I have also discussed in the previous section, that we have to see that multiplying 1 into minus 1 upon 6 will give us minus 1 upon 6. We need plus 1 upon 6. So we cannot take this, although we can get the same answer, but we cannot take this 5 it can get 1 minus 1 upon 6, we get 5 by 6. But why will not take this 5 by 6? Because when we will multiply 1 into minus 1 upon 6, we will get minus 1 upon 6, where as we should get 1 upon 6. So we should go for the next option. Let us see what will be our next option. If it is minus 2 upon 6 into minus 3 upon 6, what do you get? You get you can just put one here, minus 2 into minus 3. What do you get? Minus plus 6 upon 36. And what do you get over here? 1 upon 6. So हमें ऐसा नंबर लेना है n1 n2 जो हमारा इसको सेटिस्फाई करे. यहाँ पर हमारा 1 by 6 आ गया, और यहाँ पर आ गया माइनस 2 by 6, और माइनस 3 by 6 को अगर हमने सॉल्व किया तो यहाँ आ गया हमारा माइनस 5 by 6. तो इस बात को हमें बहुत ही ध्यान से देखना है कि हम क्या नंबर लें जो कि हमारी ये दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करें. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड वंस यू नो व्हाट यू हैव टू कीप, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. You can just simply solve this equation. 2 upon 6x minus 3 upon 6x plus 1 upon 12 is equal to 0, and later on you can just simply solve it by factorization method. You will take 2x common, it will become x minus 1 by 6, and here you will take minus 3 by 6 common, and it will become x minus 1 upon 6 is equal to 0. And what will it will become? X minus 1 upon 6 and 2x minus 3 upon 6. So what are the two values? X is equal to 1 upon 6 and as 2x is equals to 3 upon 6. So here you have got the two values in this way, and from this also this 2 will go this side. It will become 3 upon 6 to the 12. This 2 will go this side, and this will just multiply. So in this way we can just simply solve. ये जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ है ये इधर जाकर डिवाइड होती है, तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है.
यहाँ पर 3 2 6 है, हम डायरेक्ट 3/4 1/4 भी लिख सकते हैं और 3/12 करके भी काट सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम जो शुरू से क्लास 7 से सीखते आ रहे हैं, so we have to use it. And in the similar way, if we'll take another question also, this question is there, x square plus 5√5 30. अब 6 5 30 होता है। अब हम अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या लाना है, 5√5। यहाँ पर x है तो ये 1 हो गया, तो a इंटू सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 इंटू 30 आ गई। अब n1 इंटू n2 इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू, जो n1 इंटू n2 की वैल्यू 30 हो गई। अब हमें ये 30 n1 प्लस n2 के हिसाब से भी आना चाहिए। तो क्या हम ऐसा करें कि जो हमारा इसको ही जोड़ने और n1 प्लस n2 भी आए, तो 6 5 30 होता है। तो 6 5 30 अगर होता है तो ये सब चीज़ें हमको जब हम कंटिन्यूएशन में करते जाएंगे तो वी कैन वेरी इजीली नो कि अब हम इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 5 30। अब 6 5 30 है तो ये 5 को हम क्या तोड़ लेते हैं, √5। तो 5 को हमने लिख दिया √5 इंटू √5। अब हमने इसको तोड़ लिया। नाउ व्हाट डू वी गेट, 6√5 into 1√5, and if you just subtract the 6√5 by 1√5 or √5 simply we will write, then what does it become, it becomes 5√5, and we can very easily take this x square plus 6√5x plus minus √5x plus 30 is equal to 0, and then we can solve it, x plus, here we can take this x plus 6√5 we can completely take, and here minus √5 we'll take, and what it will become. अब आप ये देखिए कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई है, यही बात हम आपसे डिस्कस करने वाले थे कि आप जल्दी आपने ये लिया। अब अभी जो हम आपको बोल रहे हैं, हम नॉर्मली हमसे ये गलती होती है। यहाँ पर 6√5 इंटू √5, ये क्या हो गया, ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6√5 इंटू माइनस √5 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -30, जबकि यहाँ पर क्या है, +30। तो बच्चों ऐसी गलती हमसे जल्दी जल्दी में हो जाती है और इस गलती को हमें कभी नहीं करना है। दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल while doing the questions, we should not commit such type of mistakes. So you have to just think of another number how you can get. So अभी आप देखिए कि 30 किससे किससे होता है, 3 10 जा 30। अब हमको लाना है यहाँ पर 5√5, तो 5√5 लाने के लिए हमें अपने नंबर्स चाहिए होंगे, ये तो हमारा चला नहीं। अब हमको इसी तरीके से फैक्टर्स बनाते जाना है। तो 30 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, अब 2 इंटू 15 और उसके बाद 3 इंटू 10। अब 3 इंटू 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 2। अब 5 को कैसे हम तोड़ दें, 3 इंटू √5 इंटू √5 इंटू 2। तो हमने ये क्या करा, ये क्या बन गया, 3√5 इज इक्वल टू 5√5 आ गया। ये क्वेश्चन हमने दो इसलिए ही लिए हैं कि ताकि आप समझिए कि ये जनरली ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप जनरली जल्दी जल्दी में ऐसा लेंगे और आपसे मिस्टेक हो जाएगी। सो यू शुड बी केयरफुल। आपको ये देखना है कि n1 इंटू n2 से ये तो नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये वाला नहीं, ये वाला ऑप्शन रहेगा। 3√5 इंटू 2√5, 3√5 इंटू 2√5 इज इक्वल टू 30 होगा, और 3√5 प्लस 2√5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5√5 होएगा। तो
पहले हमने आपको गलत करके सही बताने की कोशिश इसलिए करी कि ताकि ये वाली मिस्टेक आपसे ना हो. अब now we can take this and you can very easily solve. I hope you can solve it. Otherwise I'll just show you. So what it will become? X 3 root 5 plus 3 root 5x plus 2 root 5x plus 30 is equal to 0. So what it becomes? X plus 3 root 5, and here 2 root 5 you will get, and then it will become x plus 3 2 is 6, 6 5 is 30, 3 root 5 is equal to 0. तो implies का साइन इक्वेशन में जरूर लगाना है. x plus 3 root 5 and x plus 2 root 5 is equal to 0. x is equals to minus 3 root 5 and x is equals to minus 2 root 5. So this is all what I wanted to tell. You should be very careful while solving the quadratic equation. You have to solve these equations and very careful while selecting the numbers. Now let's proceed to the next question. The next question is again, ये फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको एक पूरा सेशन इस पे बेस लेके कर रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपको इन फ्यूचर कोई डिफ़िकल्टी ना हो. तो अब हमने एक दूसरे टाइप के भी क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंक्लूडेड है. तो हम चलिए हम इसको पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस कि we'll just take the LCM. तो solution of first question, 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equal to 11 upon 30. So this what you will do, you will just take the LCM, x plus 4 and x minus 7, and what it will become over here, x minus 7 और ये माइनस साइन विल कम ओवर हियर और ये क्या आ गया माइनस x और ये प्लस 4 भी क्या बन गया माइनस 4 बन गया इज इक्वल टू 11 अपॉन 30. यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन. नाउ वील जस्ट सॉल्व x कट गया 7 माइनस 7 माइनस 4 क्या हो गया. जब ए दोनों साइन माइनस के हैं तो ऐड होगा और साइन किसका लगेगा माइनस का लगेगा. तो यहाँ क्या हो गया माइनस 11 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28 is equal to 11 upon 30. Now further we will solve it. This 11 and 11 will cancel. So यहाँ पर instead of this 11 it will become only minus 1. यहाँ पर minus 1 बन गया, इसकी जगह पे minus 1 आ गया and we can do the cross multiplication. Now doing the cross multiplication, we just ये 30 से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 30 हो गया और यहाँ पर 4x माइनस 7x माइनस 3x हो गया x स्क्वायर माइनस 3x minus 28. Further we will solve it and we will get here minus 30 is there, minus 30 will go to that right hand side, 0 will come here, x square minus 3x and plus 2 it will become. So now you can, again the problem comes what factor you are going to take. हमें वो फैक्टर लेना है जो a1 n1 into n2 और n1 plus n2 के बाद. तो यहाँ पर 1 है, 1 into 2 is 2. अब हम क्या लेंगे 2 minus 1 और minus 2 ये क्या बन जाएंगे minus 3. तो यहाँ पर हमारा क्या फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 is equal to x minus 1 and minus 2 x minus 1, 0 is equal to.
x minus 2 and x minus 1 equal to 0 and x is equals to 2 and x is equal to 1. This was a example how you have to do this type of question. You need not worry, very simply it can be solved, and I hope you have understood, and these two questions are for homework. You will do it and find out. Now the solution for this I am not going to discuss, only I am just trying to tell you the answer, so that if you do it and then you can know the answer. For this, answer is x is equal to 5 and 5 by 2, and for the next one 4 by 3, the answer is x is equal to minus 2 and 1. And these two questions you can just solve it and get the answers. Now let's proceed to here. After solving, you can verify whether you have done it correctly or not. A sample solution is given to you, just check it, but you have to learn to do it by yourself. Now another type of question I'm trying to discuss. I'm not telling you all the questions related to the exercise, because if you just I'm trying to just do the questions what I'm discussing with you, you will surely do the questions related to the exercise. So the next type of question here, this is a question. Let's take the first question first. 1 upon a plus b plus x is equal to 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon x. What we have to do is, this x we will take to the left side and it will become 1 upon a plus b plus a minus 1 upon x is equal to, see how simple this question is, and it seems that how ऐसा लगेगा पहली बार में देखकर कि बहुत ही कठिन क्वेश्चन है. अब ये this minus will come minus a minus b and minus x, and this x a plus b plus x is equal to 1 upon a. This also you will solve, a plus b upon ab. Now after this x will cancel. If you take minus common, it becomes a plus b, and x a plus b plus x. This x a plus b plus x you have to multiply also, but we will multiply later on. A plus b upon ab. Again ये जो a plus b है, this a plus b if it goes to this side, then automatically it gets cancelled, but we can just lessen one step, एक step कम करके हम डायरेक्ट यहाँ पर काट देते हैं. तो काटने के बाद यहाँ पर क्या आ गया, -1. तो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए बी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, and then we will solve it. We'll take this minus ab also to right hand side, then it becomes x square plus ax plus bx plus ab, and then we will take x common, x plus a, and b x plus a, then it becomes x plus a and x plus b, and value is equals to x is equals to minus a and minus b. I hope you have understood what was taught to you. Now let's discuss the next question. 9x square minus 3a plus b x. First of all, what we have to do in this question, we'll just open up the bracket. Then it becomes 9x square minus 3ax minus 3bx plus ab is equal to 0. Then what it 3x कॉमन लिया, 3x minus a minus b कॉमन लिया, और 3x minus a is equal to 0. Then 3x minus a and 3x minus b is equal to 0. Then it becomes
3x is equal minus a equal to 0 implies x is equal to a upon 3, and again 3x minus b equal to 0 implies x is equal to b upon 3. So this was the solution, and it's very easy. Only what you have to do is you have to just open the bracket properly and then solve it. And the sample solution is given to you, you can go through it. अब आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. एक स्नेक है, आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन. A snake hole is at the foot of a pillar and a peacock is perched on its summit. Instead of on its summit, I am writing on at 9 meter height. Seeing the snake of the distance, seeing the snake at a distance of thrice the pillar, gliding towards his hole, he pounces obliquely upon him. So we have to find out the distance from the snake's hole, where do they meet. तो हमें अपना ये डिस्टेंस निकालना है. तो ये पिकॉक है. अब ये पिकॉक कहाँ पर है? एक पिलर पे है. पिलर कितने मीटर है? 9 मीटर है. और ये स्नेक है. स्नेक यहाँ पर है. अब पिकॉक यहाँ से है और स्नेक यहाँ से है. ये दोनों क्या कर रहे हैं? सेम डिस्टेंस पे. थ्राइस द डिस्टेंस है. ये 9 मीटर का डिस्टेंस है. 9 का थ्राइस कितना हो गया? 9 से 27. और ये एक बराबर स्पीड से चल रहे हैं. तो ये यहाँ पर मिल रहे हैं. आप देख सकते हैं इसको बहुत आसानी से. अब ये जब ये डिस्टेंस यहाँ पर आकर ये पर्टिकुलर इस पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से एक हमारा एक जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट का एक हमारा वो बन जाएगा, एक हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. और हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. आप ये रियल लाइफ सिचुएशन है विच वी कैन इजीली जस्ट थिंक ऑफ दिस रियल लाइफ सिचुएशन, हाउ वी कैन मैनेज इट. Now let's proceed. Just I am trying to solve this and find out the value. तो ये जो है इसको हम कुछ मान लेते हैं. इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B. और ये हमारा पिकॉक हो गया. अब ये डिस्टेंस को मान लेते हैं D और C हो गया हमारा ये पॉइंट. तो ये क्या है? AB एक पिलर है जिसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर. तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा, वी हैव टू सॉल्व इट. लेट ए बी द पिलर ऑफ हाइट 9 मीटर. देन पिकॉक कहाँ पर बैठा है? पिकॉक इज सिटिंग एट द टॉप. टॉप ए पे बैठा है ऑफ द पिलर. और बी क्या है? बी हमारा ये होल है जहां पर स्नेक को आना है. तो बी हमारा बी इज द होल. स्नेक इस पॉइंट से होल की ओर आ रहा है. बी इज द होल. और स्नेक कहां पर है? स्नेक इज एट द पोजीशन सी. सी इज द पोजीशन ऑफ द स्नेक. अब इम्पॉर्टेंट चीज क्या है इस क्वेश्चन में कि स्पीड जो है स्नेक की और पिकॉक की इक्वल है. और पिकॉक कैचेस द स्नेक आफ्टर t सेकेंड्स, कुछ एक डिस्टेंस के बाद. तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये हमारा ये हमारा 27. ये डिस्टेंस होगा ए बी ए डी का डिस्टेंस होगा. आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा. तो हमें यही चीज हमें लिखनी है कि जो ए बी का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो तो ऑलरेडी गिवन है हमारा. अब बी डी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये हमारा एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस पिकॉक कवर कर रहा है, तो ये भी तो एक्स डिस्टेंस कवर करेगा. और ये टोटल 27 है, तो ये 27 माइनस एक्स हो जाएगा.
इतनी सी बात है जो कि हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, और ये एक रियल लाइफ सिचुएशन को हम किस तरीके से एक सवाल के फॉर्म में क्वेश्चन वी कैन सॉल्व इट. दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल व्हिच आई एम टेलिंग यू. अब बस अब ये हो गया, तो अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ इतनी सी बात से पहले ये निकाल लेते हैं, फिर जो पूछा जा रहा है उसके बाद हम इसको उसमें कर देंगे वैल्यू. पूछा जा रहा है कि से क्विकली आफ्टर हाउ मेनी क्यूबिट फ्रॉम द स्नेक्स हो डू दे मीट. वो कहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो यही डिस्टेंस हमको निकालना है, एक्स की वैल्यू. तो अब हम क्या करेंगे, ये हम ए बी डी की बात करते हैं. तो ट्रायंगल ए बी डी जो है हमारा वो राइट एंगल ट्रायंगल है. तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. दिस इज द right angle triangle and very easily we can solve it. Now we'll just proceed. Now our focus first in the quadratic equation, our focus is to make the equation, and then the second thing is we will solve the equation. तो पहली चीज तो हमने इक्वेशन बना ली, अब सॉल्विंग तो हमें आती है, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं. चलिए सॉल्व करते हैं. तो हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता है क्या होता है, तो 27 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 729. ये सारी चीजें स्क्वायर्स वगैरह याद करना आपको अच्छे से आना चाहिए. और ये क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया, माइनस 54x प्लस 9 स्क्वायर. सो यू हैव गॉट दिस. नाउ व्हाट यू विल डू, this x square is over here also. Now x you have got this x square is equal to 72. X square and x square becomes cancelled. Now 72 and 9 square is 81. So 54x I am taking this side, and 729 plus 81. So what does it becomes, 809 plus 1 10, 8 plus 2 10, 810. 54x is equal to 810. So we have to find out the value of x. So we have to, finding out the value of x, what do we get, x is equal to 810 upon 54. So we'll just divide and we'll see. 54 1 ja 54, 6 7 7 minus 5 2, and then 5 4s are 20 and 5 5s are 25, 26, 27. So our answer is 15. So what is asking ki after how so what will be our distance, distance is 27 minus x. हम लोग पीछे वाले इसमें देखते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस था वो हमारी जो स्नेक वाला, चलिए हम आपको फिगर बना के बताते हैं. रियल लाइफ सिचुएशन में जो हमारा फिगर बना था वो फिगर हमारा ये हमारा ए बी था, और ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया. चलिए यहाँ बना देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, एंड दिस इज, ये पीकॉक बैठा हुआ है, एंड दिस इज नाउ ये हमारा स्नेक है. तो ये स्नेक यहाँ से आ रहा है डी पॉइंट पे, तो ये एक्स है, ये x है, और ये 27 माइनस एक्स है. तो अब ये हमको डिस्टेंस क्या निकालना है कि यहाँ से अपने होल पे पहुँचने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 27 माइनस एक्स. तो अपने होल पे पहुँचने के लिए
20, तो हमें x की वैल्यू पता ही चल गई है, तो हम सिंपली 27 माइनस x निकाल देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ BD. BD इज इक्वल टू 27 minus 15 and what do we get? 12. So we will write snake is caught at a distance of 12 meter from the pole. ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोग इसको एक दो बार करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा. नाउ वील प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Gagan's marks in mathematics and English is 45. If he had one more marks in mathematics and one less in English, the product of marks would have been 500. Very easy question. Only I am just telling you the procedure how we will just solve the question. So what we will write? Let the marks obtained by Gagan in maths is equals to obtained by Gagan in maths be x and English. अब इंग्लिश में अभी लीनियर इक्वेशन होता है तो हम क्या लिखते हैं? y लिखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता तो हम लिखते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स इज इक्वल टू x एंड इंग्लिश इज इक्वल टू y एंड देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 एंड टू सम एक्सटेंट कहीं पर वैल्यू बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और एनी अदर मेथड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं. हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं y और फिर लिख सकते हैं फिर y अब, और नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. इंग्लिश विल बी 45 माइनस x. इसलिए जब एग्जाम में आपको ये बता के क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है कि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, आपको जो समझ में आता है आप वैसे कर सकते हैं. आप यहाँ पर अगर इसको ऐसे करते x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 करते तो भी y की वैल्यू क्या आती? 45 माइनस x आती. तो इट इज ऑल द सेम. सो यू नीड नॉट वरी हाउ वी विल फाइंड आउट वेदर दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अ लीनियर इक्वेशन. यू प्रोसीड इन द वे यू विश. आपकी जैसी इच्छा है वैसे करिए, आंसर आपका आएगा अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो. नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन फ्रेम द क्वेश्चन. जो ये कह रहा है वो करेंगे. इफ ही हैड वन मोर मार्क्स इन मैथ्स, तो इफ यू हैड वन मोर मार्क्स इन मैथ्स का मतलब मैथ्स के मार्क्स x हैं तो x प्लस 1. तब क्या आ रहा है? 1 लेस इन इंग्लिश. तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं? 45 माइनस x माइनस 1. अभी अगर लीनियर इक्वेशन होता तो हम y माइनस 1 रख देते फिर बाद में वैल्यू निकालते. तो इट डजेंट मैटर. हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं. इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करें. अगर सम होता है तो हम ऐड करते. यहाँ प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं. फाइंड द ओरिजिनल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय given number Gagan in mathematics and English separately. So we have to find out the value of both marks separately. Let us solve this equation. So what does it becomes? X plus 1 and 44 minus x. So after solving the equation, what we will get? 44x plus 44 minus x square minus x is equals to 500. So it becomes minus x square plus 43x plus 44 minus 500 equal to 0, and here it becomes minus x square minus 43x, sorry, this minus we will take to this side, then it becomes plus x square, then minus 43x, and ये 44 minus 500 will be plus this will be minus 456, then this will become plus 456 is equal to 0.
अब इसको हम फैक्टराइज मेथड से कर लेते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो 24 इंटू 19 हमारा आता है 456 और 9 प्लस 4 13 एंड 2 1 3 4, तो ये हमारा आ गया 43। तो हम रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 19 x प्लस 456 इज इक्वल टू 0, x माइनस 24 माइनस 19 x माइनस 24 x minus 24 and x minus 19। बच्चों फैक्टराइजेशन को आप जितना करेंगे उतना ही आपको अच्छे से आएगा। सो डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ दीज ऑल थिंग्स, यू डू एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन ऑफ फैक्टराइजेशन, सो दैट आप इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो मल्टीप्लिकेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत सारी चीजें एक साथ आपकी जुड़ती हैं और आप यू कैन बी आपको मैथमेटिक्स में ये जो बेसिक चीजें होती है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारी चीजें आपके बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे यू हैव लर्नड एवरीथिंग। तो अब इसमें यहाँ पर मार्क्स सेपरेटली पूछे, लेकिन हमारे पास क्या आएंगे दो, मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए लिया ही है, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आएंगे। तो अब यहाँ पर दो सिचुएशंस बनेंगी। एक सिचुएशन बनेगी मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स, अगर मैथ्स के मार्क्स अगर मैथ्स के 24 होते हैं तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे 24, 45 माइनस 24 इज इक्वल टू 21। सेकेंड, ये फर्स्ट केस है। अगर सेकेंड केस में मैथ्स के मार्क्स कितने हैं 19 है तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे 45 माइनस 19, तो हमारा कितना आएगा 26। तो दो सिचुएशंस इस क्वेश्चन में हमारी बन रही हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आया है एंड यू विल जस्ट डू इट वंस अगेन बाय योरसेल्फ सो दैट यू मे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। ये यहाँ पर द सैम्पल सॉल्यूशन इज गिवन टू यू, यू कैन जस्ट गो थ्रू इफ यू हैव एनी डाउट। अब क्वेश्चन रिलेटेड टू पाइप आई हैव टेकन if you have watched the session of linear equation in two variables, I have very well explained this topic, telling you the basic concepts related to work and time। वर्क एंड टाइम का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें हमको ये देखना होता है कि डेज है, अगर मिनट्स हैं या आवर्स हैं, तो अगर कोई आदमी एक दिन में 5 दिन में एक काम को करता है तो वी हैव टू फाइंड आउट इन 1 डे। इसी तरीके से यहाँ पर मिनट्स में है तो अगर कोई भी मिनट्स लेते हैं तो फिर हम 1 मिनट में निकालते हैं। जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग इन 1, वी हैव टू इन्वर्ट द थिंग्स, जस्ट इन्वर्ट द थिंग। तो यहाँ पर हम लेट्स ट्राई टू सॉल्व इन द सेम मेथड विच वी हैव फॉलोड इन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये थियोरेटिकल इक्वेशन बाद में सॉल्विंग में भी डिफरेंट, बट ये थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट बी डिफरेंट, दैट विल बी सेम। तो आप वैसे ही समझिए जैसे आपने लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को समझा था, कुछ अलग समझने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। So what we will write? Let the pipe can fill 1 tank in x minutes. So in 1 minute it will fill portion of the tank filled in 1 minute। यहाँ पर एक टैंक मतलब एक काम x मिनट्स में हो रहा है, तो 1 मिनट में कितना काम होगा 1/x पार्ट होगा। अब मान लेते हैं कि ये पाइप A का काम था, अब पाइप B का काम कर लेते हैं। पाइप B क्या ले रहा है 5 मिनट्स मोर ले रहा है, तो लिख लेते हैं लेट द पाइप B fills the tank
in let नहीं why let then the pipe B fills the tank in x plus 5 minutes. इसका भी 1 minute निकाल देते हैं. Portion filled in 1 minute. ये 1 टैंक है, यहाँ 1 मिनट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5 पार्ट. तो 1 मिनट में इसका काम आ गया और 1 मिनट में इसका काम आ गया. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई. अब यहाँ पर आ रहा है 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 मिनट्स. तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2 पाइप्स together can fill a tank in 11/9 minutes. 11/9 minutes means 100/9 minutes. अब यहाँ पर जो दोनों पाइप खोल दिए गए एक साथ और वो कितने देर में काम कर रहे हैं 100/9 मिनट्स में कर रहे हैं. तो हम इनका भी दोनों पाइप का भी हम क्या कर लेते हैं 1 मिनट का काम निकाल लेते हैं. तो 1 मिनट का काम क्या हो जाएगा portion filled in 1 minute. Same way we will write in 1 minute. 1 मिनट में कितना वर्क हो जाएगा 9/100 पार्ट. ये क्वेश्चन 3 हो गया. तो अब हमारा क्या हो गया ये ए पाइप का 1 मिनट का काम, बी पाइप का 1 मिनट का काम और दोनों पाइप 1 मिनट में इतना काम करते हैं. तो हमारा क्या हो गया 1 + 2 बराबर 3 क्या. तो 1 मिनट के काम को सबको ऐड कर दिया. तो अब क्या हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 9/100 and we will just solve this equation. So what it becomes x plus 5 plus x is equal upon x square plus 5x is equal to 9/100. So it becomes 2x plus 5 upon x square plus 5x is equal to 9/100. So it becomes 200x plus 500 is equal to 9x square plus 45x, and it becomes 9x square plus 45x minus 200x minus 500 is equal to 0. 9x square minus 155x. Just you have to learn to solve the equation, nothing else. अब यहाँ पर 500 है, यहाँ माइनस 500, तो हमारा जो n1 into n2 भी है वो भी माइनस में है, n1 plus n2 भी माइनस में है. तो हम 500 को फैक्टराइज कर लेंगे, यहाँ स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा -180 इंटू 25 अगर हम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 इंटू 500 क्या हो जाएगा 4500, और यहाँ पे भी आप कर लीजिए तो यहाँ पे भी आ जाएगा -4500, और -180 प्लस 25 कितना हो जाएगा -80 और प्लस 25 कितना हो जाएगा -155. एंड वी विल जस्ट सिंपली सॉल्व इट बाय पुटिंग द वैल्यू. 9x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 25x माइनस 500 इज इक्वल टू 0. उसके बाद वैल्यू रख के हम निकाल लेंगे x माइनस 20 और 9x प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 20. दिस इज क्योंकि वैल्यू हमारा जो टाइम निकल रहा है टाइम विल नॉट बी इन माइनस, तो x पाइप जो पाइप A है विल फिल इन 20 मिनट्स एंड पाइप B विल फिल इन 25 मिनट्स. तो ये दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. I hope you just keep on practicing the questions related to pipe and cistern, question related to drains and everything. Then different category of questions are given, and whenever you find any question, just take a try whether you can solve it or not. Now let's proceed to the next question.
before proceeding, the sample solution is given to you. You can just go through it and have the proper information. अब यहाँ पर ट्रेन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे. आई एम regularly practicing everything to you. I'm making you practice so that you may not be scared of any different type of question is given to you. यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन, द ट्रेन इज ट्रेवलिंग at an average speed for a distance. At an average speed means we have to it may be any speed, so we will just assume the speed be x. So what we will write, we will read line by line and we will write line by line solution also. Let the average speed is equals to x किलोमीटर पर आवर. अब डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम. यहाँ पर दो टाइम्स है. यहाँ पर क्या कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर. 63 किलोमीटर के लिए एक स्पीड है, इस पर ट्रेवल कर रही. उसके बाद यहाँ पर 72 किलोमीटर के लिए जो इसकी स्पीड होगी वो एवरेज स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर होगी. तो आप ये देखिए कि जब डिस्टेंस अलग है, स्पीड अलग है, तो नेचुरल सी बात है कि टाइम ऑल्सो विल बी डिफरेंट. सो वी हैव टू एज्यूम फर्स्ट टाइम, लेट द फर्स्ट टाइम बी t1 एंड द सेकेंड टाइम बी t2. तो हम लोग क्या कर लेंगे, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी वो बनी, क्या बनी, फर्स्ट केस 63 अपॉन x अगर हमारी वो है तो टाइम हमारा t1 है. इसी तरीके से सेकेंड केस में ये हमारा 6 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा स्पीड इज देयर and the distance is 72 kilometers. So what we will write here, 72 upon x plus 6 is equal to t2. Now if the speed is also different and the distance is also different, then we have taken the time as t2. Now the third, what it is saying, it takes 3 hours to complete the total journey. Complete the total journey means total distance जितना है, that to cover the total distance it has taken 3 hours. So what we will do, we will just simply t1 plus t2 is equal to 3 hours. So we will just keep the value of t1. Value of t1 is 63x and value of t2 is 72. 72 upon is equal to 3, and then we will just simply solve it. Solving it can be made very easier. यहाँ पर आपको एट द फर्स्ट साइड ये दिख रहा होगा कि 9 7 से 63, 9 8 से 72. अगर यहाँ पर 9 होता तो हम 9 कॉमन ले लेते, लेकिन अभी यहाँ 3 है, सो वी विल टेक 3 कॉमन. सो व्हेन वी विल टेक 3 कॉमन, देन इट विल बिकम 21 upon x, and this will become 3 2 is 6 and 3 4 is 12. 24 upon x plus 6 is equal to 1. ये 3 upon ये 3, अभी यहाँ 3 है, sorry. Now when you will just cut this 3 will go to this side and it will become 1. So what you will write here, and here we will take this 21 x plus 6 plus 24 x is equal to 3 upon 3 will become 1 and x square plus 6x. This is how you have to proceed in the calculation. Calculation part in quadratic equation is very important because children sometimes feel little bit difficult because of less practice. Only I can say this much. So when we will solve this further, what we will get, 21 x plus 126 plus 24x is equal to x square plus 6x, and we will take everything to one side, and then it will become, here we will keep 0, here it will become x